आर्टिकल्स पर सब लोग नाम सुना है आर्टिकल्स का, मोटा मोटी सब लोग जानते हैं। Yes, बोलिए। sir. यस सर। बड़ा Yes, इम्पोर्टेंट sir. चीज है ये, प्रत्येक सेंटेंस में रहता है। Yes, sir. हाँ, सब लोग जान Yes, रहे हैं ना sir. आर्टिकल्स। पहले से कुछ भेंट मुलाकात है ना आर्टिकल से, नहीं बोल रहे हो? Yes, sir. यस सर। ठीक है। हाय सर। आप अब आपको डिटेल में आपको हम डिटेल में दे रहे हैं। इंट्रोडक्शन पहले सुनो, इंट्रोडक्शन, उसके बाद मीनिंग ऑफ आर्टिकल्स। इंट्रोडक्शन में आर्टिकल्स और सब लोग ध्यान देकर सुनो, इसका पीडीएफ मिलेगा, इस पर हम बात भी करेंगे। जितना अभी तैयार है वो सब सुन लो ध्यान से। राजीव, हेलो। यस सर, बोलिए ना। तो बोलता क्या नहीं, बोलने में तुम्हारा बहुत खर्चा हो जाता है क्या? सर नेट कमजोर है थोड़ा। इंट्रोडक्शन में ठीक है, क्या जोर हो जाता है। इंट्रोडक्शन आर्टिकल्स का क्या है, पहले तो आप लोग परिचित हैं आर्टिकल से, अब विस्तार से जानिए। आप लोग हायर क्लास में चले गए हैं, विस्तार से इंट्रोडक्शन में बोल रहा हूँ। आर्टिकल्स आर वेरी important words, very important words in English, and so is their knowledge. They are used before only nouns. They are used before only nouns to limit or define their, मतलब nouns का uses in the context of the sentences. They impart effectiveness and accuracy to the noun. In fact, articles are used as demonstrative adjectives and determiners before nouns. It needs practice. A introduction हुआ। मीनिंग ऑफ आर्टिकल, मीनिंग ऑफ आर्टिकल फिर खोल दीजिएगा उसको। हाँ, एन एंड द आर द three articles in the English language. Articles belong to the group of noun determiners. That is, they determine the noun in terms of its definiteness. They are used before nouns or nouns groups and indicate whether the noun they precede is inequally by the speaker, writer, or listeners, either of expression or not. As Rajan, an engineer, gave the fifth of his property to the city museum. They are probably the simplest words. They are probably the most used words. They are means A and the. These three words are known as articles. It is difficult to master these, particularly the without sufficient practice. Without sufficient practice. Indefinite article. A or an is called the indefinite article because it leaves indefinite the person or thing is spoken for examples. There shall come a day when every will be rich. एक समय आएगा जो सब भी धनी हो जाएंगे. This is the sentence. The writer of the above sentence is indefinite about the day. He can't specify a particular day. It could be any day. The difference between a and an is only phonetic means of saying. Both of them serve the same functions. Articles. Rule 1. An is used before a word beginning with a vowel sound. Incorrect. The English bear a enemy of the French. सुनना हो ना सब लोग? हेलो। यस सर। यस सर। यस सर, सुन रहे हैं। The word enemy begins with a vowel E sound. So use an. Correct.
The English bear an enemy of the French. Note, there are 5 vowels in the English alphabet. A, E, I, O, U. The rest are consonants. Incorrect. Incorrect. He is a MP. He is a MP. MP stands for Member of Parliament. But when you read the above sentence, MP is read as EMP. So the word begins of vowel E sound. The correct indefinite article is therefore and. Correct. He is an MP. He is an MLA. He is an MA. He is an MSc. He is an SP. There is an FIR. There is a X-ray. अब देखिए Rule number 2. Rule number 2. It is used before a word beginning with a consonant sound. Incorrect. An girl is waiting for me. Girl begins with a consonant T sound. So it should be preceded by. Correct. A girl is waiting for me. A girl is waiting for me. Incorrect. Shweta is an university student. Incorrect. Shweta is an university student. You are tempted to use and when you see the U in university. U is university, but pronounce it and it is university. Why say? That is, it begins with a Y sound. Y is consonant, so correct. C is a student. Shweta is not an university student. Shweta is क्या होगा? Shweta is नहीं बोल रहे. Shweta is Correct. A university. university. Not university. Here University. U का साइन क्या हो रहा है? प्रोनाउंसिएशन क्या हो रहा है? या हो AEIO. U. Rule number 3. Before certain phrases, in a hurry. फ्रेज तुम लोग को चल रहा है, फ्रेज पर बहस चल रही है. कोई है इन ए ह्यूरी, ए पीटी, टेक ए लाइकिंग, टेक ए फैंसी, टेल ए लाई नहीं. फील ए सेम, मेक ए नॉइज, don't make a noise. Don't make a noise. Don't make a noise. Next, fourth, before the words denoting numbers as 100, a dozen, a million. Before the words denoting numbers as 100, a dozen, a million. Next, there is no plural of a and. Son of any is the equivalent of the plural. A horse, some horses, any horses. An orange, some orange, any orange. Next, in exclamation with what or how before similar countable nouns as what a hot day, what a hot day, what a pretty girl, what a naughty child, how fine a day, what a full age. Next, before the verbs used as nouns as for a swim, have a pen, for a talk, for a rest, for a walk, for a visit, how a taste, for a drive, have a mind. Next, in certain expression of quantity with certain numbers and expression of price, rate, speed and ratio.
8, ₹10, a kill. A dozen mangoes, half a dozen. These are the rules. अभी हमने इसका पढ़ाई हो रहा इंट्रोडक्शन बोला. अब चलिए इंट्रोडक्शन, उसके बाद मीनिंग हुआ. है जाओ ना, पढ़ाई हो रहा है. Introduction and meaning. Then rules, the uses of A and in. इंट्रोडक्शन पढ़ाइए. अब आप सम्मिलित होइए. आप इसमें आप लोग सम्मिलित होइए. हेलो, है ना सब लोग? है सब लोग? Yes sir. Yes, sir. हाँ. इसका PDF आपको मिलेगा. एक खुशी की बात है कि 22 पार्टिसिपेंट्स इसमें हैं, और जब PDF इसका तैयार करेंगे, क्या और तैयार हो रहा है, तो इंग्लिश के जो मेधा शक्ति के लोग हमारे हैं उनको भी एज ए गेस्ट इनवाइट करेंगे हम. उनको भी, उनसे भी आप लोग डिस्कशन कीजिएगा, बात होगी. आप इंट्रोडक्शन पर आइए. इंट्रोडक्शन है, इसीलिए हम कहें कि लिखो मत, अभी दिक्कत हो जाएगी. इसका आपको तुम्हारा अर्थ भी हो गया. और आइए आप हम लोग बात करें. अब इसमें बहस में भाग लीजिए. PDF मिल जाएगा, फिर से उसमें हम लोग कोशिश करेंगे. हेलो विनय. यस सर. विनय. यस सर. Yes sir. Hello. Yes यस sir. भाग लो. इस जवाब देना. हाँ, जवाब sir. देना. How many kinds of articles? How many kinds of articles? There are three kinds of articles. There are Two three kinds of kinds two है article का, definite and indefinite होता है. Definite और और indefinite. 3 article होता है. धीरे से बोलिए. हाँ. Sir, There two are- kinds of 3 articles. 3 articles in 2 kinds. There are 2 kinds articles. The kinds 2 है. First is definite, second is indefinite. A and Indefinite. are definite articles. Indefinite. Indefinite articles है, और dot definite articles. The is dot definite definite. articles है. समझ गए? इसी पर आज हम इंडिफिनिट आर्टिकल के प्रयोग के बारे में आपको बतलाएं. समझ गए? अब चलिए, इसमें हमने बतलाया है दे आर यूज्ड बिफोर ओनली नाउन्स. इनका प्रयोग कहाँ होता है? Nouns से Nouns. पहले. इनका प्रयोग होता है. हाँ. और नाउन्स में तो हमने नाउन्स के पहले या बाद में, नाउन्स में पर. और नाउन्स का कंसेप्ट मालूम है तुमको? नाउन क्या हुआ? Yes, व्हाट इज नाउन? So all the naming जानिएगा words तब are तो called nouns. समझिएगा. प्लेस या Naming words are called noun. A place, Noun. person, thing, animal, idea. हाँ, सब लोग नाउन को समझिए, तब इसको समझिए. ये कहाँ प्रयोग होता है? Noun. Naming word is बोलिए. noun. Noun में प्रयोग होता है. They are used. ध्यान दीजिए इस पर. They are used before. They are used before nouns. They are used before nouns to limit or define their nouns. Uses in the context of the sentences. इस लाइन को समझिए. They are used before only nouns. Only nouns. They are used before only nouns to limit or define their nouns. Uses in the context of the sentence. समझ रहे ना? ये केवल नाउन के पहले ही प्रयोग में आता है. तो नाउन के पहले नहीं, एडजेक्टिव के पहले इसको समझ लीजिए. और नाउन का ग्रामर से नाउन को समझिए. व्हाट इज नाउन? हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन? इसका बेस आपको रहना चाहिए, तब आगे पढ़िएगा. देख लीजिए, उसको नहीं याद हो तो एक बार देख There are लीजिए. 5 types of noun. हाँ, बोलिए कौन कौन नाउन है? हाँ. The sir, common बोलिए. noun, proper noun, materialistic noun, abstract noun, और common, proper, collective noun. collective noun. Collective noun. Material. हाँ, मटेरियल नाउन. हाँ, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन,
abstract noun, abstract, abstract noun. abstract noun और material noun. समझ गए? ये सब का इम्पोर्टेंस है, लेकिन इसमें ज्यादा इम्पोर्टेंस है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन का। Common. कलेक्टिव नाउन सुनिए, कलेक्टिव नाउन एक कंसर्निंग विथ सिंटैक्स है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से है। कलेक्टिव नाउन नहीं याद पड़ा? Yes. जो बतलाए थे कलेक्टिव नाउन। Yes sir. Yes sir. बताए थे group. हाँ, उस पर मतलब बात फीलिंग, करते हैं। आइडिया, ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है। हाँ, और दो चीज पर ध्यान देना है, वो सब छोटे बच्चे को पढ़ाया जाता है, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट, मटेरियल। लेकिन आप लोगों के लिए दो नाउन बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको खूब बढ़िया से पढ़िएगा। पहला है कौन चीज? कलेक्टिव नाउन, और दूसरा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। Collective noun, एब्स्ट्रैक्ट abstract noun. एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये इस पर गंभीरता से पढ़ना है, बस ज्यादा नहीं, ये दोनों को समझना है। एब्स्ट्रैक्ट, क्योंकि बार बार ये काम आएगा। एब्स्ट्रैक्ट नहीं, एब्स्ट्रैक्ट बराबर यूज होगा। अब चलिए, कोई हमारे बच्चे कलेक्टिव नाउन का जो हम पढ़ाए थे, एक सेंटेंस बोलिए। अब सिंगुलर कलेक्टिव नाउन का क्या प्रयोग हुआ था जो पहले से आ रहा है हमारे बच्चे? Sir, बोलिए। a team of हाँ। players. हाँ, ठीक है, बोलो, और बोले पूरा बोलो, पूरा सेंटेंस फ्रेम करो। Sir, a team of players are playing cricket. हाँ, A galaxy A of team of- stars are very beautiful. सुनो। ए टीम ऑफ प्लेयर्स क्या होगा? ए टीम ऑफ प्लेयर्स डैश प्लेइंग इन द फील्ड, क्या लिखोगे? Sir, is playing in the field. है ए, और कोई? शिवानी, हेलो, क्या होगा? सिंगुलर कलेक्टिव नाउन का बोलो तो। A set of books has been bought. हाँ, A ठीक set है। of books. हाँ, ठीक है। और कोई बच्चा कोई भी? राजीव, तुम बोलो। बोलो। हेलो। हम बोले शिवानी। हाँ, A बोलो। gang हाँ, of बोलो। robbers running. A gang of robbers is running. हाँ, ठीक है। और कोई? विनय, Yes, sir. बोलो इस बार सिंगुलर कलेक्टिव Yes, नाउन sir. पर बोलो ना। और कोई? रिंकू तुम बोलो, एक बोलो सिंगुलर कलेक्टिव नाउन पर। बस ये पढ़िए रे। A सलोनी, team of players is playing. ए टीम ऑफ प्लेयर्स इज प्लेइंग। और बोलो। Sir, बोले A band of elephant is roaming in the jungle. a galaxy of star is very beautiful. एक गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, कौन बोल रहे हो? Who are you? सौम्या, हाँ, ठीक है, एक गैलेक्सी ऑफ स्टार्स का प्रयोग हुआ हो जाएगा। इज वेरी गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, वेरी गुड, ठीक है। और कोई? शिल्पी, सर हम बोले राजीव। हाँ, बोलो। ए बंडल ऑफ स्टिक्स। ए बंडल ऑफ स्टिक्स, वेरी गुड। ए बंच ऑफ कीज। वाक्य बनाओ, जी। मन से लाते हो, टेक्निकल एडवाइजर है, गलती है बोलते हैं। सिंगुलर कलेक्टिव नाउन में ये लाइब्रेरी थोड़ी आ गए पागल। बोलो। Sir, a flock of sheep is gazing हाँ। in the field. सर ये हो जाएगा। हाँ। ए बास्केट ऑफ फ्रूट्स। हाँ, वेरी गुड। ए बास्केट ऑफ फ्रूट्स। फ्रूट्स इज लाइंग हियर जी। इन आवर चौक, सीवर चौक पर है क्या? जी। बास्केट ऑफ A फ्रूट्स। bus of persons are very. क्या बोलते हो? A bus of person. सिंगुलर कलेक्टिव नाउन पर एक्सरसाइज करो, ग्रामर देखो, इसमें देखो। और बच्चे हमारे नहीं बोल रहे हैं, बहुत दुखद बात है।
अंजलि, अनीशा, सलोनी, सौम्या एंड Sir, स्नेहा। हाँ hello. ठीक है, हाँ बोलो। A bunch of keys is laying on the table. A bunch of keys is lying, नहीं, on the table. Very good. Sir, a bunch of grapes. A bunch of grapes is. Sir, ठीक है, चलो। नहीं ये नहीं हुआ। देयर इज थोड़े सिंगुलर कलेक्टिव नाउन है। Sir, a Similar group collective of noun. word हाँ, in the books. A group of word हाँ। in the book. एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा, हमेशा ध्यान दो। जब सिंगुलर कलेक्टिव नाउन है जो सब्जेक्ट आएगा, सब लोग ध्यान से सुनो। जब सिंगुलर कलेक्टिव नाउन का प्रयोग एज ए सब्जेक्ट होगा तो उसमें जो बाद वाला जो नाउन है वह प्लूरल होगा। जैसे ए बंच ऑफ कीज, ए बंच ऑफ ग्रेप्स, a baby of girls, a baby of ladies, a team of players, a gang of bad elements, a gang of robbers, a gang of thieves, ये भी उसका ना a bird of a herd, ओ बोलने दो ना, a herd of cattle। जब बोलना है तब नहीं बोलती हो, हम बोलते हैं तो उसमें a herd of cattle। लड़कियों के समूह को क्या कहोगे? लड़कियों के समूह को A baby of बेबी ऑफ, फिर गर्ल्स कहो, गर्ल नहीं कहो। गर्ल्स, किताब के समूह को क्या कहोगे? बुक्स, किताब के a समूह sets of books. ए सेट ऑफ बुक्स। सिगरेट के समूह को क्या कहोगे? सिगरेट के समूह को, बहुत ज्यादा सिगरेट हो उसको क्या कहोगे? 10 को 20 को ज्यादा सिगरेट हो उसको क्या कहोगे? बंडल बोलेंगे सर। बैठ, तुम तो और कौन पढ़ाई पढ़ा है अभी नहीं यार। बंडल कहेंगे उसको, बंडल कहेंगे। पैकेट, ए पैकेट ऑफ सिगरेट्स, ए पैकेट ऑफ सिगरेट्स। बंडल, बहुत चीज का ना बंडल होता है, उड्स का बंडल होगा। तो क्या तुम मने हमारा प्रवक्ता है रे? ए बंडल ऑफ स्टिक्स, ए बंडल ऑफ वुड्स, ए बंडल ऑफ क्लॉथ्स। कपड़े का एक बंडल होगा। ध्यान लगाओ, थोड़ा विकास करो। हैं?